गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज सुनाई दे रहा है सबको? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग हाँ, आवाज सुन के लग रहा है अभी भी सो रहे हो। नो सर। सर ऑनलाइन क्लास है तो सो के क्लास मत लेना। सो लास्ट क्लास में हमने कुछ मैथमेटिकल टूल्स के बारे में बताया था कि हमें कुछ मैथमेटिकल टूल्स भी डिस्कस करना है। दोज आर एक्चुअली वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर टू सॉल्व different kind of problems that will face later part. So उसके लिए हमने फर्स्ट जो डिस्कस किया था दैट इज ग्रेडियंट, है ना। किसी भी स्केलर फंक्शंस का अगर हमें ग्रेडियंट फाइंड आउट करना हो, हाउ वी कैन फाइंड आउट दैट एंड व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशंस वी यूज दिस डेफिनेशंस ग्रेडियंट। ठीक है, तो सिमिलरली और दो टूल्स आज हम देखेंगे, कर्ल एंड डाइवर्जेंस। सो curl of a vector field. So वेक्टर फील्ड का कर्ल लाइक आप अगेन जो लास्ट क्लास में बताया गया था, मान लीजिए से वी हैव ए सर्टेन रीजन, this region is R, and with this region say let's say a vector A which is again say function of x y z. It can have x component, y component, z component, or all these components are function of x y z, and this vector is actually differentiable at each point in this region R. Then we can define this curl of this vector. Curl of this vector is defined in this way: curl of A is equals to I cap, j cap, k cap, and then del y del x, del y del y, and del y del z, ax, ay, az. Okay, az. So if we find out this determinant, that determinant will give this curl of this vector. ठीक है, इस वेक्टर फील्ड का कर्ल देंगे हमें। So इसके लिए हमने क्या किया? We have assumed, we have considered region R, and we have assumed that one vector field A is represent some kind of vectors in this region, and its vector is differentiable. Why it is differentiable? Differentiable होने के लिए क्या जरूरत है? क्योंकि देखो, whenever we try to find out this determinant, है ना, हमें क्या करना पड़ेगा? इस y component को x का respect में differentiate करना है, x component को y का respect में differentiate करना है. So it must be differentiable at this point. Otherwise ये differentiation अगर ना हो तो हम define नहीं कर पाएंगे कर्व। ठीक, so अगर differentiable हो इस point पे, then we can define this curl of this vector using this, है ना। Again it is only in the rectangular coordinate system. In other coordinate system में कैसे लिखना है वो भी हम दिखाएंगे आज, लिखेंगे सीखेंगे। So if we have a vector which has x component, y component, z component, it's all these are function of x, y, z. So अगर हमें इस वेक्टर का कर्ल फाइंड आउट करना हो, so we have to find out determinant of, है ना, इस determinant फाइंड आउट करना है, i component, j component, k component. So आप नेक्स्ट देखते हैं, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है किसी भी वेक्टर फील्ड का कर्ल, हम किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल अगर फाइंड आउट करते हैं तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? लाइक आप ग्रेडियंट जैसे हमने देखा है, किसी भी लेवल सरफेस के ऊपर एक अगर हमें यूनिट नॉर्मल ड्रॉ करना हो, देन विल फाइंड आउट ग्रेडियंट. Similarly, if we want to see some kind of nature, that how this vector field is behaving, like this gradient and divergence, they are actually represent some kind of nature of this vector field, you know, vector field का कुछ nature represent करते हैं. So whenever we curl, will take curl of a vector field, if this curl is 0, it will create some kind of scenario in our mind, and if it is non-zero, then it will behave like in other way. So we have to understand that part कि अगर किस वेक्टर का कर्ल 0 हो, और अगर कर्ल 0 है तो इस वेक्टर कैसे बिहेव करना चाहिए, एंड अगर कर्ल नॉन 0 हो तो इस वेक्टर कैसे बिहेव करना चाहिए। कर्ल अगर से आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस पे हो, प्लस आई कैप माइनस जे कैप, सो इस डायरेक्शंस का मीनिंग क्या है, ये सारी चीज हमें यहाँ पे समझना है। सो नेक्स्ट लिखो क्या फिजिकल मीनिंग ऑफ कर्ल, एंड ऑल्सो विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाई curl of electrostatic field is always 0 and curl of a magnetic field
in general it becomes a non-zero, and curl of a induced electric field is always non-zero. So ये कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी आज देखो आप यहाँ से मिलेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखो क्या फिजिकल मीनिंग ऑफ कर्ल। So to understand this curl, यहाँ पर एक वेक्टर फील्ड ड्रॉ करता हूँ। लेट्स से ए वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप एंड वाई जे कैप, एंड बी वेक्टर it's the three vectors, a vector, b vector and c vector. B vector equals to say minus y I cap plus x j cap, okay, plus x j cap, and c vector is equals to y I cap minus x j cap, ठीक है, y I cap minus x j cap. So इस थ्री वेक्टर अगर हम एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ करें, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इन एक्स वाई प्लेन अगर हम ड्रॉ करें, तो हमें कुछ ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस, ये मान लीजिए वाई एक्सिस, सिमिलरली यहाँ पर भी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, like this, ठीक है। So x axis y, x y, x y. So it could be 3D space also, but 3D space पे हमें इसे थोड़े से समझने में दी प्रॉब्लम होंगे, so 2D में ही ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, 2D में बेटर अंडरस्टैंडिंग उसकी तरफ का। So ऐसे एक वेक्टर फील्ड है जिस वेक्टर का देखो x कंपोनेंट एक्स आई कैप है, y कंपोनेंट वाई जे कैप है। तो इस वेक्टर फील्ड को अगर हम एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ करना चाहें, तो जब भी किसी वेक्टर फील्ड को हम ड्रॉ करते हैं तो ये रिप्रेजेंट है एरो। तो एरो एक्चुअली बेसिकली एरो का जो लेंथ होंगे, लेंथ विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर फील्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, एंड एरो का जो डायरेक्शन है, दैट डायरेक्शंस विल गिव यू द डायरेक्शंस ऑफ दिस वेक्टर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो यहाँ पर भी देखो, अगर हम इस वेक्टर फील्ड से एट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 पे अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करने चाहे, तो x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 विल बी 0 null vector, and then on the x axis अगर हम देखें, on the positive x axis, so y will be 0 and x will be say 1 I cap, 2 I cap and 3 I cap, like this vector will be 2 I cap, 3 I cap and 4 I cap. So if we put x equals to 1 and y equals to 0, we'll get a vector like 1 I cap, and then if we put x equals to 2 and y equals to 0, it will give us 2 I cap, and then if we put a 3, then it will be 3 I cap, and so on, like 4 I cap, like this. So on the opposite side अगर हम next negative x axis के ऊपर देखें, so again on the negative x axis y will be 0 and x will be now -1, -2, -3. So this vector will be -1 I cap, -2 I cap, -3 I cap. So -1 I cap, -2 I cap and -3 I cap. Similarly, if we draw this vector field on the positive and negative y axis, so on the y axis x will be 0, and if we take y is equals to 1, 2, 3, 4, so we'll get a 1 j cap, 2 j cap, and then 3 j cap. Similarly, on the negative y axis, -1 j cap, -2 j cap, and -3 j cap. And in between, अगर यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करो, से लेट्स से 1, 1,
x equals to 1, y equals to 1. So we'll get I cap plus j cap. So this vector will make angle positive x-axis and positive y-axis 45, and length will be say √2. And then if we put y equals x equals to 2 and y equals to 2, again this vector will also make the same angle 45 degree with x-axis. एंड देन एरो इसी डायरेक्शंस पे होंगे, बट डायरेक्शन एरो का लेंथ जो है लेंथ इंक्रीज हो जाना चाहिए क्योंकि मैग्नीट्यूड इंक्रीज होंगे. एंड देन इफ वी पुट x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 3, ये जो है लेंथ और इंक्रीज हो जाएगा. तो सिमिलरली अगर हम इस कोऑर्डिनेट पे देखें, सॉरी इस साइड पे देखें जहाँ पे x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, सो यहाँ पर अगर हम x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू +1 पुट करें, सेकंड वेक्टर जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएंगे. एंड नेक्स्ट इफ वी पुट से -2 +2 will be along this, and then -3 +3 will be this. On the third quadrant, x and y both will be negative. So if we put x equals to -1, y equals to -1, vector will be along this. And then x equals to -2, y equals to -2 will be this, and x equals to -3, y equals to -3 will be this. And on the fourth quadrant, x will be again positive, y will be negative. So x is 1 and y is -1. So minus I cap, sorry, plus I cap minus j cap. So this vector will be like this. And then -2, sorry, 2 -2 and 2 -3 put करेंगे तो हमें ऐसी वेक्टर मिलेंगे. ठीक है. तो लगभग इस वेक्टर का अगर हम ड्रॉ करें तो हमें कुछ इस तरीके से वेक्टर फील्ड क्रिएट होते दिखाई देंगे. फॉर एग्जाम्पल मान लो से we have a water fountain on a surface, plain surface, and water will be generated from this here and it will be spread over the surface like this. ठीक है. So इस टाइप का वेक्टर फील्ड क्रिएट होंगे. Another way you can say कि आप यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट चार्ज रखें, चार्ज काइंड ऑफ थिंग रखें, तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, नॉट मैग्नीट्यूड वाइज, एटलीस्ट जो नेचर होंगे, सम काइंड ऑफ वेक्टर फील्ड जो है फील्ड लाइन ऐसी जनरेट होता है, आप लोग देखे होंगे. तो इस टाइप का एक वेक्टर फील्ड जनरेट होंगे. सो आप नेक्स्ट वेक्टर फील्ड ड्रॉ करते हैं, इस वेक्टर फील्ड को भी सिमिलर पैटर्न पे ड्रॉ करें हम. सो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अगेन x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 पुट करना है. सो एट द ओरिजिन अगेन दिस वेक्टर विल आल्सो बी अ null vector, and then on the positive x axis if we put say y is equals to 0 and x equals to +1 +2 +3, we'll get 1 j cap, 2 j cap and 3 j cap. So 1 j cap, 2 j cap, 3 j cap, and then if we take 4, then 4 j cap. And on the negative x-axis, again y will be 0 and x will be -1, -2, -3, -4. So directions will be downward. So minus j cap, -2 j cap, -3 j cap, and then -4 j cap. And similarly on the positive y-axis, x will be 0. And if we put say y is equals to +1, +2, +3, +4, we'll get a -1 I cap, -2 I cap, -3 I cap, -4 I cap. So vector will be towards left like this. And similarly on the negative y-axis, so if we put -1, -2, -3, already there is negative sign, so it will be plus. So you get a plus j cap, +2 j cap, +3 j cap, and +4 j cap. And इसके सिवा भी देखो, if we take say x equals to 1, y equals to 1, so what we'll get? We'll get a minus I cap and plus j cap. So this vector will make like कुछ ऐसे एंगल बनाएंगे इस टाइप का, है ना. सो अगर हम अदर पॉइंट भी लें तो ये जो लाइन एक्चुअली हमें यहाँ पे जनरेट होते दिखाई देंगे, ये सारे लाइन जो है क्लोज लाइन बनाएंगे, तब एक के साथ ये लाइन इसके साथ मिक्स कर जाएंगे. तो इस टाइप का अगर हम कंटिन्यूअसली ड्रॉ करें यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू, कंटिन्यूअस वैल्यू पुट करके देखोगे तो वेक्टर फील्ड कुछ ऐसे जनरेट होंगे यहाँ पे लाइक दिस. ठीक है. इस टाइप का वेक्टर फील्ड यहाँ पे जनरेट होते दिखाई देंगे. सो बेसिकली यहाँ पर क्या दिखाई देंगे, यहाँ पर देखो ऐसे देख रहे थे कि एक पॉइंट से वेक्टर फील्ड डाइवर्ज हो रहा था धीरे धीरे, है ना. देयर हैव सम सोर्स, सम सॉर्ट ऑफ सोर्स, और जहाँ से इस वेक्टर फील्ड जो धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है.
यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? We have a vector field which is rotating about some axis. In this case, it will be rotating about the positive x-axis, z-axis, and this rotation will be along the according to anti-clockwise direction. And next इस vector field को अगर हम देखें almost same है, तो यहाँ पे बस साइन चेंज कर दिया गया है. So यहाँ पर भी अगर हम पॉजिटिव y x-axis के ऊपर देखें, so on the positive x-axis y will be 0 and x will be 1 2 3 4. So इस केस में वेक्टर्स है, वेक्टर होंगे माइनस जे कैफ, so माइनस आई जे कैफ, माइनस 2 जे कैफ, माइनस 3 जे कैफ, माइनस 4 जे कैफ, and on the negative x-axis there is a negative sign, so minus 1 minus 2 minus 3 जो पुट करोगे, so opposite directions पे होंगे. So it will be like this, and then on the x-axis, sorry, on the y-axis, x will be 0, and if we put say y is equals to 1 2 3 4, and on the negative y-axis minus 1 minus 2 minus 3, so vector will be here like this: minus 2 minus 1 j cap, minus 2 j cap, minus 3 j cap, minus 4 j cap, and here it will be like this minus. ठीक है? So यहाँ पर भी वेक्टर देखो, अगेन सिमिलर काइंड ऑफ जो वेक्टर यहाँ पर जनरेट हो रहा है, यहाँ पर भी जनरेट हो रहा है. सिर्फ क्या चेंजेस हुए, यहाँ पे रोटेशन कर रहा था अराउंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस पर, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शंस पे रोटेशन. ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस पे रोटेशन. अब आपको थोड़ी सी मेहनत करना होंगे यहाँ पे. ये जो हमने कर्ल का डेफिनेशंस बताए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इन तीनों वेक्टर का कर्ल आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, ये जो तीन वेक्टर हमने यहाँ पे डिफाइन किया, इन तीनों वेक्टर का कर्ल फाइंड आउट करो. जो डेफिनेशंस आपको लास्ट पेज में लिखा गया, उस डेफिनेशन से अकॉर्डिंग हमें क्या मिलना चाहिए. फर्स्ट वेक्टर का x कंपोनेंट पुट करो, x कंपोनेंट पुट करो x, एंड ये y कंपोनेंट इज y. तो उसके बाद आप i कंपोनेंट फाइंड आउट करके देखो, j कंपोनेंट फाइंड आउट करके देखो, k कंपोनेंट फाइंड आउट करके देखो, आपको क्या मिलेंगे? i कैप, j कैप, k कैप, del y del x, del y del y, del y del z, x y 0. सो यहाँ पे आप i कंपोनेंट फाइंड आउट करके देखो. i कंपोनेंट के लिए इस वाला कॉलम और इस वाला रो आप कवर कर दीजिए. तो इस 0 को y का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 मिलेंगे, माइनस इस y को z का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको 0 मिलेंगे. तो i कंपोनेंट विल बी 0. सेकंड इज j कंपोनेंट. तो j कंपोनेंट के लिए इस कॉलम और इस रो को कवर करिए. इससे आप x को z का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन विल गेट 0, एंड 0 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन विल गेट 0. एंड फाइनली अगर आप k कंपोनेंट देखेंगे तो k कंपोनेंट क्या करना है, हमें y को x का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x को y का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेंगे यहाँ पे? 0. सो फर्स्ट वेक्टर फील्ड का कर्ल हमें क्या मिलेंगे? 0. इस वेक्टर फील्ड का कर्ल फाइंड आउट करके देखो. कर्ल ऑफ b i कैप, j कैप, k कैप, del y del x, del y del y, del y del z, एंड देन x कंपोनेंट यहाँ पर है आप y minus y I cap, so minus y, and then plus x 0. सो यहाँ पर भी आप i कंपोनेंट फाइंड आउट करके देखो, आपको 0 मिलेंगे. j कंपोनेंट फाइंड आउट करो, 0 मिलेंगे. लेकिन अगर हम k कंपोनेंट फाइंड आउट करें तो यहाँ पे x को हमने x का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, विल गेट 1, एंड देन माइनस ऑफ y का माइनस y को y का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, विल गेट माइनस 2 टाइम्स माइनस मल्टीपल होंगे तो प्लस 1. सो आई विल गेट 2 k कैप. ठीक है, 2 k कैप. एंड देन इस लास्ट वेक्टर का अगर हम कर्ल फाइंड आउट करें, कर्ल ऑफ c, एवरीथिंग इज सेम. यहाँ पे जस्ट इस यहाँ पर होंगे प्लस, यहाँ पर होंगे माइनस. सो इस वेक्टर का कर्ल हमें क्या दिखाएंगे? माइनस 2 k कैप. ठीक है, माइनस 2 k कैप. सो यहाँ पे हम 3 एग्जाम्पल दिया जहां पर हमने क्या देखा है, 2 केसेस में कर्ल इज नॉन जीरो, and in the first case curl is 0.
सो किसी भी वेक्टर फील्ड में जब भी हम कर्ल ऑपरेट करेंगे, आइदर इट विल बी जीरो और इट विल बी नॉन जीरो. If it is non-zero, then either it will be positive or it will be negative. So all these three situations we get here, है ना? We have a zero and we have a two cases non-zero. In first case it is positive and second case it is negative. So इन तीनों केसेस को अगर हम यहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व करें तो देखो हमें क्या मिलेंगे. जब भी किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल हमें जीरो मिलेंगे, ठीक है, किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल अगर हमें जीरो मिले, सो जीरो मिलने का मतलब ये हुए इस वेक्टर फील्ड जो है किसी भी एक्सिस के अबाउट में कभी भी रोटेट नहीं करेंगे, ठीक है. एंड किसी वेक्टर फील्ड का अगर कर्ल नॉन जीरो हो, सो इस केस में विल गेटिंग अ 2k कैप. एग्जैक्ट अगर ऐसी वैल्यू मिले 2k कैप, 2j कैप, 5j कैप, 100 i कैप लाइक दिस. सो ये जो यहाँ पर जो वेक्टर दिखाता है कि ये वेक्टर दिखाता है वो एक्चुअली एक एक्सिस डायरेक्शन रिप्रेजेंट बताता है. उस एक्सिस के अबाउट में क्या होंगे, उस वेक्टर जो है रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है. सो यहाँ पे जेड एक्सिस के अबाउट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस पे रोटेट होते दिखाई देंगे हमें. एंड थर्ड वेक्टर जो है, इस वेक्टर का भी कर्ल नॉन जीरो है बट ये नेगेटिव है एंड माइनस k कैप डायरेक्शंस में. तो यहाँ पर क्या होगा, अगेन जेड एक्सिस के अबाउट में आइदर आप यू कैन से कि नेगेटिव, यहाँ पे देखो पॉजिटिव डायरेक्शन से मतलब आउटसाइड से देखोगे तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शंस पे रोटेट होते दिखाई देंगे. यही अगर आप बैक साइड से देखोगे तो आपको क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट होते दिखाई देंगे. सो मोरल ऑफ द स्टोरी आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल अगर नॉन जीरो हो, ठीक है, देन दिस वेक्टर विल बी रोटेट अबाउट सम एक्सिस. एंड ऐसी वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, इट्स ए रोटेशनल वेक्टर. किसी एक्सिस के अबाउट में अगर रोटेट करें, सो दिस टू वेक्टर फील्ड इज कॉल्ड रोटेशनल वेक्टर. सर हाँ सर अगर कोई कांस्टेंट नहीं आके कुछ आ रहा है, एक्स वाई का फंक्शन है, कुछ भी आ रहा है, तब हम उसमें एक्सेस कैसे बताएंगे? तब आपको वैल्यू पुट करना पड़ेंगे एक्स वाई जेड का, कुछ आर्बिटरी डिफरेंट पॉइंट पे डायरेक्शन डिफरेंट होंगे, है ना. मतलब वो रोटेशनल तो होगा हर ना? पॉइंट पे एक्स एक्सिस सेम एक्सिस के अबाउट में रोटेट करे, डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डायरेक्शंस होंगे टू पुट सम वैल्यू वहां पे, देन यू कैन सी इस डायरेक्शन. सर अगर हम कुछ वैल्यूज पुट करते हैं और वो जीरो आ जाता है तो फिर हम वो इररोटेशनल कह देंगे उसको? कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो सकता है आपको वो रोटेट, आप मतलब डिफरेंट ऑब्जर्वर फ्रेम आप पे रोटेट कर रहा है. मान लो से सेम वेक्टर फील्ड, एक आप डिस्क के ऊपर कोई चीज रोटेट कर रहा है, आप उससे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो रोटेट होते दिखाई देंगे, लेकिन आप अगर उस डिस्क के ऊपर चढ़ जाओगे तो आप क्या रोटेट होते दिखाई देंगे? नहीं सर, वो नहीं नहीं ना. दिखेगा. तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सो डिफरेंट पॉइंट के रेस्पेक्ट में डिफरेंट हो सकता है ना. सर मैं कह रहा था ना कि जैसे अगर एक्स कैप प्लस वाई कैप करके कुछ आता है तो सर वो 0,0 पे हम देखते हैं तो उस फ्रेम पे वो हमें दिखेगा, रोटेशनल नहीं दिखेगा. और अगर किसी और फ्रेम में देखते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर एक्सिस पे वो रोटेट करता दिखेगा. रोटेट होते दिखाई दे. ओके सर, तो उसको हम सर किस कैटेगरी में रख सकते हो? तो फ्रेम पे डिपेंड करता है ना कि रोटेशनल है फ्रेम या नहीं. डिपेंड करता है, तो एक फ्रेम के रेस्पेक्ट में इट विल बी रोटेशनल, अच्छा. दूसरे फ्रेम में इट विल बी रोटेशनल. ओके सर, थैंक यू. एंड थर्ड सेकंड थिंग क्या है, यहाँ पर भी देखो जिस वेक्टर फील्ड का कर्ल अगर जीरो हो, सो इस वेक्टर कभी भी किसी एक्सिस के अबाउट में रोटेट नहीं करेंगे, एटलीस्ट जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर हम देख रहे हैं. तो ऐसे वेक्टर फील्ड को आप क्या बोलेंगे, इट्स ए इरोटेशनल वेक्टर फील्ड. ठीक है, इरोटेशनल वेक्टर फील्ड. ओके, सो आप देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो जनरेट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक्चुअली जनरेट होता है ड्यू टू स्टैटिक चार्ज. किसी पॉइंट पे चार्ज अगर रेस्ट पे रहे तो उस केस में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट होंगे. तो किसी पॉइंट पे अगर चार्ज रेस्ट पे रहे, आप लोग 12 क्लास में एटलीस्ट 12 क्लास में एक एक्सपेरिमेंट होता है जहाँ पे आपको मैग्नेट रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना होता है. तो सिमिलरली आप एक पॉइंट पे एक चार्ज फिक्स रखे, दूसरे अगर मूवेबल चार्ज है, सो उस मूवेबल चार्ज के ऊपर कुछ कलर लगा दीजिए, भाई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ चार्ज दीजिए, यानी दिस चार्ज इज फ्रीली मूवेबल हो. सो आप मान लीजिए यहाँ पर एक फिक्स चार्ज है और इस प्लेन के ऊपर एक दूसरे चार्ज अगर हम यहाँ पे रखें जो कि फ्रीली मूवेबल हो,
सो इस चार्ज अगर दोनों इसे मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो ये चार्ज पॉजिटिव, ये चार्ज पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज को रिपल्स करेंगे। तो इस केस में जिस पाथ पर अब ट्रेवल करेंगे उस पाथ को अगर हम यहाँ पे ट्रेस करें तो हमें जो लाइन मिलते हैं उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी स्टैटिक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होंगे वो भी देखोगे किसी रीजन पे अगर सोर्स है, सो सोर्स से हमेशा क्या होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें डाइवर्ज होते दिखाई देंगे, कन्वर्ज होते दिखाई देंगे, है ना। सो किसी पॉइंट के अबाउट में हमेशा डाइवर्स होंगे, कन्वर्ज होंगे, प्लेन से डाइवर्स होंगे, कन्वर्ज होंगे, और पैरेलल प्लेन लाइन क्रिएट हो सकता है, लाइक टू पैरेलल प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होंगे पैरेलल प्लेट होंगे। बट कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी क्लोज लाइन नहीं बनाता है, ठीक है। इस टाइप का वेक्टर फील्ड कभी भी क्रिएट नहीं करता स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी के वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल हमेशा हमें क्या मिलेंगे, जीरो मिलेंगे। वही अगर हम कंजर्वेटिव इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेट ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। सो देखो कि अब जब हम इंडक्शन पढ़ाएंगे तब ये चीज हम डिस्कस करेंगे। ये मान लो किसी रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पे, एंड इस मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ डिक्रीज हो, सो यहाँ पर जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड पे ऐसी सर्कुलर पाथ बनाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल अगर इस स्पेस वेरिंग ना हो, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो, तो इस केस में एग्जैक्टली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी कोसेंट्रिक सर्कल, ठीक है, कोसेंट्रिक सर्कल। सो अगेन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगे इट विल बी क्लोज लूप, जिसके वजह से क्या होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल अगर हम देखें तो हमसे क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक, नॉन जीरो होना चाहिए। एंड वही अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का भी कर्ल देखें, मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल इन जनरल आपने एम्पियर्स लॉ पढ़े होंगे, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, कर्ल ऑफ बी इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट जे, ठीक है, म्यू नॉट जे। सो अगर यहाँ से करंट फ्लो तो इसके वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी लाइन के अराउंड पे ऐसी क्लोज लाइन बनाएंगे, तो इसी के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम कर्ल फाइंड आउट करें तो इन जनरल हमें क्या मिलना चाहिए, नॉन जीरो, ठीक है, नॉन जीरो। सो यहाँ से एटलीस्ट आपका कुछ पिक्चर आपके दिमाग में बने हुए होंगे। अगर किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल जीरो हो तो इसका मतलब उस वेक्टर फील्ड उस पॉइंट के अबाउट में रोटेट नहीं होंगे, एंड उस वेक्टर फील्ड का अगर कर्ल नॉन जीरो तो इस एक्सिस के अबाउट में वो रोटेट होता हमें दिखाएंगे। ऐसे वेक्टर का हम बोलेंगे रोटेशनल वेक्टर, एंड जिस वेक्टर का कर्ल जीरो होंगे इसे हम क्या बोलेंगे, इरोटेशनल वेक्टर। एंड मोस्ट ऑफ द वेक्टर जो इरोटेशनल वेक्टर होता है इसका कर्ल अगर जीरो हो तो किसी भी क्लोज लूप बराबर इसे अगर हम इंटीग्रेट करें लाइन इंटीग्रल, तो उस लाइन इंटीग्रल का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब एक चार्ज पार्टिकल को अगर हम इसी फील्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट को इसी फील्ड में एक क्लोज लूप बराबर अगर हम रोटेट करें तो मूव करें, हमें कुछ भी वर्क डन नहीं करना पड़ेंगे। तो इसका मतलब इस सिस्टम जो है, सिस्टम का एनर्जी हमेशा क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे, है ना। तो इस टाइप फील्ड को क्या बोला जाता है, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। सो डाइवर्जेंस अगेन एज्यूम सम रीजन से आर, एंड इस रीजन पे एक वेक्टर है, ये वेक्टर व्हिच इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड का फंक्शन है। सो अगर एक्स वाई जेड का फंक्शन हो, सो यहाँ पर भी मान लीजिए इस वेक्टर का अगर हम डाइवर्जेंस डिफाइन करने चाहें, एंड इफ दिस वेक्टर इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट इन दिस रीजन आर, देन इस वेक्टर का डाइवर्जेंस हम कुछ इस मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेंगे, जो वेक्टर का फर्स्ट कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट को आप एक्स का रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करिए, प्लस वाई कंपोनेंट को वाई का रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करिए, प्लस जेड कंपोनेंट जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करिए, और ये सारे डिफरेंशिएशन आपको ऐड करना है, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशंस ऑफ एनी वेक्टर which is function of x y z। अगर हो तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग अगर हमें किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस डिफाइन करना हो, जिस वेक्टर का x कोऑर्डिनेट x हो, y कोऑर्डिनेट y हो, z कोऑर्डिनेट z हो, तो इस वेक्टर का डाइवर्जेंस कुछ हम इस तरीका से डिफाइन करेंगे, ठीक है।
तो इसके लिए देखो आप इसी फिगर को और एक बार रीड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर जो 3 वेक्टर फील्ड हमने ड्रॉ किए थे, सो इन्हीं में से जो फर्स्ट वेक्टर फील्ड का अगर हम डाइवर्जेंस कैलकुलेट करें यहाँ पे, इस फर्स्ट वेक्टर फील्ड का अगर हम डाइवर्जेंस कैलकुलेट करके देखो क्या होना चाहिए। फर्स्ट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या था, एक्स, वाई कंपोनेंट था वाई। तो एक्स को एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे विल गेट 1, एंड वाई को वाई का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो विल गेट 2, 1 एंड सो 2, सो व्हिच इज बेसिकली नॉन जीरो। एंड सेकंड वेक्टर फील्ड का अगर हम कर्ल लें, सॉरी डाइवर्जेंस लें, तो सेकंड वेक्टर फील्ड क्या है यहाँ पे, सेकंड वेक्टर फील्ड जो है वाई, आई कंपोनेंट y का फंक्शन है एंड x कंपोनेंट, j कंपोनेंट x का फंक्शन है। सो यहाँ पे हम x कंपोनेंट को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो x कंपोनेंट था माइनस y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 0, एंड सेकंड था x j कैप, सो x j कैप को आप y का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको 0 मिलेगा। तो डाइवर्जेंस आपको क्या मिलेंगे, 0। ठीक है, डाइवर्जेंस क्या मिलेंगे, 0। सो किसी वेक्टर फील्ड का देखो डाइवर्जेंस आइदर इट विल बी 0 और इट विल बी नॉन जीरो, and if it is non-zero then again it will be either positive or negative. So यहाँ पर एक केसेस हमने मिला जहाँ पे डाइवर्जेंस हमें क्या मिलेंगे, नॉन जीरो, एंड दूसरे केस में हमें क्या मिलेंगे, डाइवर्जेंस इज 0। एंड इस फर्स्ट वेक्टर फील्ड को अगर हम एक माइनस साइन से मल्टीपल कर दें, यहाँ पे है ना, इस ए वेक्टर को अगर हम कुछ ऐसे लिखें, ये जो वेक्टर फील्ड है, इस वाला वेक्टर फील्ड में एक माइनस माइनस साइन मल्टीपल कर दीजिए, माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप। सो ये जो सारे एरो है, ये एरो आप सेंटर अंदर की तरफ होंगे। की तरफ हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे 3 वेक्टर यहाँ पर भी जनरेट होंगे। सो यहाँ पर भी देखो किसी वेक्टर का अगर डाइवर्जेंस 0 हो, सो डाइवर्जेंस अगर नॉन जीरो हो, तो नॉन जीरो होने का मतलब क्या दिखाई देंगे, ऐसे वेक्टर फील्ड जो है हमेशा एक सोर्स से, सोर्स रीजन से क्या होंगे, डाइवर्ज होते हमें दिखाई देंगे। पर फर्स्ट वेक्टर फील्ड अगर हम ड्रॉ करें तो हमें कुछ ऐसे वेक्टर फील्ड मिला था, तो इस टाइप का वेक्टर फील्ड जनरेट होंगे। सो अगर इस टाइप का वेक्टर फील्ड हो जहाँ पे हमें क्या दिखाई देंगे, अगर किसी भी फील्ड एक सोर्स कंटेंट करके रखे, तो सोर्स से हमेशा क्या होंगे, डाइवर्ज होते दिखाई देंगे। जैसे एक पॉइंट चार्ज रखे बाय एक चार्ज कैरिंग स्फीयर अगर हम रखें, तो स्फीयर के अंदर अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहे तो उसमें अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो जैसे जैसे आर का वैल्यू इंक्रीज होते जाएंगे क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज होते जाएंगे, सो डाइवर्ज बढ़ते जाएंगे। एंड अदर वो क्या है, जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होंगे, क्लोज लाइन बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लाइन बनाएंगे, तो ऐसे वेक्टर फील्ड का कोई भी डाइवर्जेंस नहीं है। बस ये दो पैरेलल प्लेट के बीच में जो रीजन है, उस रीजन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आप एक बार नेचर देखो क्या होंगे, इससे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म क्यों, क्योंकि दोनों प्लेट के बीच में कोई चार्ज नहीं है, सो फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म जनरेट होंगे इस केस में। सो यहाँ पर भी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस लें तो हमें क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। इन चार्ज फ्री रीजन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस लें हमें 0 मिलेंगे। सो यहाँ से हम क्या बोल सकता हूँ, जस्ट लाइक कर्ल, किसी वेक्टर फील्ड के ऊपर अगर हम डाइवर्जेंस ऑपरेट करें, सो आइदर इट विल बी 0 और इट विल बी नॉन जीरो। सो अगर ये 0 हो तो ऐसे वेक्टर फील्ड किसी भी सोर्स के अराउंड पे, किसी भी सोर्स व सिंक पे कभी भी डाइवर्स व कन्वर्स नहीं होंगे। लेकिन अगर डाइवर्जेंस नॉन जीरो हो, आइदर से इट इज पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव हो तो हमें क्या दिखाई देंगे, इट विल बी कन्वर्ज फ्रॉम ए सोर्स, एक सोर्स से कन्वर्ज होते हमें दिखाई देंगे, सॉरी डाइवर्ज होते हमें दिखाई देंगे। एंड इफ इट इज नेगेटिव तब क्या होंगे, इट विल कन्वर्ज टू ए सिंक। ठीक है, एक कन्वर्ज टू ए सिंक। सो 3 पॉइंट यहाँ पे लिख लो कि इफ divergence of A is not equals to 0 but simply greater than equals to 0, greater than 0 मतलब it is positive, then A field will diverge
from a source. If divergence of A is less than 0, that is again non-zero, but इस केस में negative हो, then A field will converge to a sink and third, if divergence is 0, then A field will neither converge to a sink nor diverge from a source. ठीक है? So either divergence will be 0 or divergence will be non-zero. So divergence अगर greater than 0, so it will this field will contain some source, and that from this source this vector field will be diverged. If it is negative, then this vector field will contain a sink point, and vector field will be converged at that point, sink point. And if it is non-zero, if it is 0, then it will not converge anywhere. It will not diverge also from anywhere. It will be just a parallel line. ठीक है? हर पॉइंट पे इसका मैग्नीट्यूड जो है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शंस पे होंगे, कुछ ऐसे. ठीक है? सो अब देखो, जैसे किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल अगर 0 हो, तो हम उस वेक्टर फील्ड को क्या बोलते हैं? रोटेशनल वेक्टर फील्ड. एंड किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल अगर नॉन जीरो हो, तो ऐसी वेक्टर फील्ड को हम क्या बोलते हैं? इरोटेशनल वेक्टर फील्ड. सॉरी, किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल अगर नॉन जीरो हो, ऐसी वेक्टर फील्ड को हम बोलते हैं रोटेशनल वेक्टर फील्ड. एक्सिस के अबाउट में रोटेट होते दिखाई देंगे. किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल अगर 0 हो, इसका मतलब ये रोटेट नहीं होंगे, तो इस वेक्टर फील्ड को हम क्या बोलेंगे? इरोटेशनल वेक्टर फील्ड. तो सिमिलरली अगर किसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस 0 हो हर पॉइंट पे, जिस रीजन हमने कंसीडर किया उस रीजन पे हर पॉइंट पे अगर 0 हो, तो इस रीजन पे इस वेक्टर फील्ड को हम क्या बोलेंगे? इससे सॉलिनॉइडल. It is also called solenoidal vector field. ठीक है? किसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस अगर हर पॉइंट पे 0 हो, ऐसे वेक्टर फील्ड को हम सॉलिनॉइडल वेक्टर फील्ड बोलेंगे. तो समटाइम्स हमें ये पूछा जाता है. बोलेंगे ना? हाँ, नॉन सॉलिनॉइडल बोलेंगे ना अगर? नहीं, नॉन सॉलिनॉइडल है, सॉलिनॉइडल वेक्टर फील्ड. Okay. लाइक आप मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस हमेशा 0 होता है ना, तो उसी हाँ की सर. वजह से उसी नाम से लिखा जाता है सॉलिनॉइडल वेक्टर फील्ड. सो अब ग्रेडियंट कर्ल डाइवर्जेंस हमने आप डिफरेंट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा हमने. हाँ बोलो. सर मतलब जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक रीजन ऑफ स्पेस हो, उसमें एक सर्टेन नंबर ऑफ फील्ड कन्वर्ज कर रहा है और उतना ही नंबर ऑफ फील्ड डाइवर्ज भी कर रहा है, सो कैन वी से दैट इज अ सोलेनॉइडल? डाइवर्ज और कन्वर्ज एक साथ अगर हो, मींस दे आर इक्वल अमाउंट ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस. नो, एक्चुअली आप देखो, तब आप डिफरेंट पॉइंट पे देखोगे तो एक पॉइंट पे आपको वेक्टर फील्ड डाइवर्ज होते दिखाई देंगे, एक पॉइंट पे वेक्टर फील्ड आपको कन्वर्ज होते दिखाई देंगे ना. सो डाइवर्जेंस होने के लिए हर पॉइंट पे वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. तभी जाके आप उससे डाइवर्जेंस सॉलिनॉइडल वेक्टर फील्ड बोल सकते हो. सो नेक्स्ट हमें क्या सीखना है यहाँ पे कि आप ये जो कर्ल ग्रेडियंट डाइवर्जेंस हमने डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने देखा है, तो इस
रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका फिजिकल मीनिंग भी हमने देखा है, डेफिनेशंस भी देखा है। तो अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमें लिखने चाहें तो हमें कैसे लिखना है, तो उसके लिए आप कुछ एक छोटा सा टेबल बना लीजिए और इस टेबल के हेल्प से हम इस वेक्टर फील्ड का जो है कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस आसानी से लिख सकता हूँ। तो इसके लिए इधर इस जो टेबल है, इस टेबल पे लिखे क्या, सबसे फर्स्ट कॉलम पे लिखे कोऑर्डिनेट सिस्टम, सो यहाँ पर लिखे कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड यहाँ पर आप लिखे U1, U2, U3 एंड देन H1, H2, H3, and then E1, E2 cap and E3 cap. So first to a rectangular coordinate system. Second is spherical. Third is cylindrical. ठीक है, rectangular, spherical and cylindrical. So यहाँ पे U1, U2, U3 ये सारे वेक्टर आप जानते हो, ये सारे जो यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे U1, U2, U3 क्या है कि जो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने जो वेरिएबल यूज किया था, लाइक इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पे 3 वेरिएबल था, क्या था, x, y एंड z. सो यहाँ पे U1 पे लिखो x, U2 is y एंड U3 is z. ठीक है, U3 is z एंड देन इस H1, H2, H3 क्या है, H1, H2, H3 जो हमने डिफरेंट वेरिएबल के साथ जो एसोसिएटेड ऑफ एलिमेंटरी लेंथ हमने लिखा है, उस एलिमेंटरी लेंथ का कोएफिशिएंट। सो x एक्सिस बराबर एलिमेंटरी लेंथ था dx, तो dx का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1. सिमिलरली y एक्सिस बराबर एलिमेंटरी लेंथ था dy, सो dy का कोएफिशिएंट होना चाहिए 1 एंड dz का कोएफिशिएंट इज आल्सो 1. उसके बाद क्या यहाँ पे E1 cap, E2 cap, E3 cap, E1, E2, E3 they are actually unit vector associated with each variable. So x axis बराबर unit vector था I cap, J cap and K cap. ठीक है, I cap, J cap and K cap. Spherical polar coordinate पे क्या लिखोगे, वेरिएबल R थीटा फाई, R थीटा फाई. अब इस R बराबर एलिमेंटल लेंथ क्या था स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे, dr. dr का कोएफिशिएंट क्या लिखोगे, 1. थीटा बराबर एलिमेंटल लेंथ था r d थीटा, सो d थीटा का कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे हम, r. एंड फाई बराबर एलिमेंटल लेंथ देखो r sin थीटा d फाई, सो d फाई का कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे हम, r sin थीटा. ठीक है, r sin थीटा एंड देन यहाँ पर I कैप, यहाँ पर r बराबर यूनिट वेक्टर था r कैप, थीटा कैप, फाई कैप. ठीक है, r कैप, थीटा कैप, फाई कैप. सिमिलरली सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट पे वेरिएबल था रो, फाई, z. सो रो बराबर एलिमेंटल लेंथ d रो, तो d रो का कोएफिशिएंट होंगे 1. फाई बराबर एलिमेंटल लेंथ था रो d फाई, सो रो. एंड z बराबर एलिमेंटल लेंथ था dz, तो dz का कोएफिशिएंट होंगे 1. एंड यूनिट वेक्टर क्या होना चाहिए, रो कैप, फाई कैप, जेड कैप. ठीक है, रो कैप, फाई कैप, जेड कैप. सो वंस आपको इस
स्टेबल पता है कि U1 U2 U3 H1 H2 H3 E1 कैप E2 कैप E3 कैप डिपेंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखना है। सो नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे ग्रेडियंट लिख सकते हो, ग्रेड ऑफ ए कोई भी स्केलर फंक्शन। सो इससे इन टर्म्स ऑफ हम U1 U2 U3 H1 H2 H3 E1 E2 E3 कैप में लिखेंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेंगे, मान लीजिए से आपको फाइव गिवन है और आपको इसको ग्रेड फाइंड आउट करने बोला गया है, से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में फाइव गिवन है, तो आप इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे। अब मान लीजिए से फाइव जो है वो अगर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे गिवन रहे आर थीटा फाइव का फंक्शन हो, तो आप तब इस H1 H2 H3 इस वाला टेबल से रिप्लेस कर दोगे इस वाला रो से। सिमिलरली फॉर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो यहाँ पे मान लीजिए ग्रेड फाइव हमें फाइंड आउट करना है। सो इन टर्म्स ऑफ H1 H2 H3 पे लिखे तो हम क्या लिखेंगे कि 1/H1 del phi by del U1 E1 cap 1/H2 del phi by del U2 E2 cap and then 1/H3 del phi by U3 E3 cap। ठीक है, सो ये आपका ग्रेड फाइव का डेफिनेशन है। सो फाइव जिस कोऑर्डिनेट पे गिवन रहेंगे उस कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग H1 H2 एंड U1 U2 एंड E कैप E2 कैप E3 कैप का वैल्यू आपको पुट करना है। सेकंड क्या है, ये मान लीजिए कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी, इस वेक्टर क्वांटिटी का अगर हमें डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना हो, सो अगेन हम इसे इन टर्म्स ऑफ H1 H2 H3 U1 U2 U3 में लिखेंगे और आपको वेक्टर फील्ड जिस कोऑर्डिनेट पे गिवन रहेगा उस कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे क्या 1/H1 H2 H3, ठीक है, 1/H1 H2 H3 एंड देन एक यहाँ पे एक ब्रैकेट लाओ। इस ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट क्या लिखो कि del बाय del U1 एंड देन अगेन फर्स्ट ब्रैकेट, और इस फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पर अगर आप अपने U1 लिखा है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर H1 H2 एंड H3 एंड देन वेक्टर का फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है, वेक्टर का फर्स्ट कंपोनेंट मतलब से अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन रहे तो वेक्टर का हम x कंपोनेंट यहाँ पे पुट करेंगे। सिमिलरली सेकंड टर्म हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि del बाय del U2, यहाँ पे U2 है तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे H1 H3 एंड वेक्टर का सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, वेक्टर का सेकंड कंपोनेंट प्लस del बाय del U3, यहाँ पर पुट करोगे H1 H2 एंड वेक्टर का थर्ड कंपोनेंट एंड देन थर्ड ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, सो सबसे पहले 1/H1 H2 H3 ये सारे टर्म के साथ मल्टीपल होंगे। देन यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे del बाय del U1 H2 H3 ये 1 एंड del बाय del U2 यहाँ पे H1 H3 ये 2, सिमिलरली यहाँ पे del बाय del U3 H1 H2 ये 3। नेक्स्ट क्या है, या अगर आप कर्ल डिफाइन करने चाहोगे कर्ल ऑफ ए वेक्टर, सो इसके लिए हमें क्या करना है यहाँ पे कि H1 एक डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। सो H1 E1 H2 E2 एंड H3 E3। इस डिटर्मिनेंट का फर्स्ट जो रो है, फर्स्ट रो पे क्या लिखोगे H1 E1 H2 E2 H3 E3। नेक्स्ट यहाँ पे लिखो del बाय del U1 del बाय del U2 del बाय del U3 एंड फाइनली इस वेक्टर फील्ड का मान लो से आप H1 फर्स्ट कंपोनेंट एंड देन H2 फर्स्ट कंपोनेंट एंड देन H3 फर्स्ट कंपोनेंट एंड यहाँ पर जो है इस डिटरमिनेंट के साथ 1/H1 H2 एंड H3 मल्टीपल कर दिए। ठीक है, सो ये क्या है, किसी वेक्टर फील्ड का अगर हमें कर्ल डिफाइन करना हो तो कर्ल कुछ आप इस तरीके से लिख सकते हो कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/H1 H2 H3
एंड देन डिटरमिनेंट होंगे, डिटरमिनेंट का फर्स्ट कंपोनेंट होंगे, फर्स्ट रो होंगे H1 U1 E2 H2 E2 H3 E3, सेकेंड रो होंगे del by del U1 del by del U2 del by del U3, एंड थर्ड रो पे हम क्या पुट करेंगे, वेक्टर का फर्स्ट कंपोनेंट के साथ H1 मल्टीपल करिए, सेकेंड कंपोनेंट इसके साथ H2 मल्टीपल करिए, एंड थर्ड कंपोनेंट इसके साथ H3 मल्टीपल कर दिया। ठीक है, तो इससे आपको यहाँ पे आपको किस कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग लिखोगे, ऑफ कोर्स जो वेक्टर आपको गिवन रहेंगे, से हमें मतलब ये वेक्टर का डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है, ये वेक्टर जिस कोऑर्डिनेट पे गिवन रहेंगे आपको उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम अकॉर्डिंग ये डेफिनेशंस यूज करना है। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमें जब आगे बढ़ के एक लैपलेस इक्वेशन पढ़ना होता है, सो एक होता है लैप्लेसियन ऑपरेटर। ठीक है, सो अभी के लिए इसका लिख लो, इसका फिजिकल मीनिंग एंड लैप्लेसियन ऑपरेटर का काम क्या है, सब वगैरह जब हम लैप्लेस इक्वेशंस पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। सो इस लैप्लेस ऑपरेटर कुछ इस तरीके से लिखा रहता है डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, सो इस डेल्टा स्क्वायर अगर हम इन टर्म्स ऑफ H1 H2 H3 में लिखने चाहें, सो इट ऑलमोस्ट सिमिलर टू द डाइवर्जेंस। सो यहाँ पर भी क्या लिखोगे H2 H3 एंड देन एक थर्ड ब्रैकेट स्टार्ट करो, और इस थर्ड ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट लिखो क्या, डेल बाय डेल U1, एंड देन यहाँ पर डाइवर्जेंस में क्या था H2 H3, अब यहाँ पर हमें H1 से भी डिवाइड करना पड़ेंगे। ठीक है, H1 एंड देन वेक्टर का डेल बाय डेल U2 डेल बाय डेल U1 सॉरी डेल बाय डेल U1। आप यहाँ पे वेक्टर ऑपरेट करोगे तो वेक्टर के ऊपर ऑपरेट होंगे, यहाँ पे स्केलर ऑपरेट करोगे तो स्केलर के ऊपर ऑपरेट होंगे। ठीक है, देन सेकंड क्या लिखोगे यहाँ पे कि डेल बाय डेल U2। सो यहाँ पे लिखोगे, आपने अपने नोटबुक में लिखो इस सिमिलर अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, यहाँ पर देखो U1 था तो हमने लिखा H2 H3 डिवाइडेड बाय H1 डेल बाय डेल U1। तो यहाँ पर अगर हम डेल बाय डेल U2 लिख रहा हूँ तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए हमें, H1 H3 divided by H2. H1 H3 divided by H2 and then del by del U2, and finally third component लिखेंगे del by del U3, यहाँ पर होंगे H1 into H2 divided by H2 H3. divided by H3. H3 del by del U3। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप स्केलर फंक्शन ऑपरेट करोगे तो हाँ यहाँ पर भी वही स्केलर फंक्शन आएंगे, यहाँ पर भी वही स्केलर फंक्शन आएंगे, यहाँ पर भी वही स्केलर फंक्शन आएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप वेक्टर ऑपरेट करोगे तो वेक्टर का x कंपोनेंट y कंपोनेंट z कंपोनेंट, अगर तीनों कंपोनेंट हो तो तीनों कंपोनेंट के ऊपर ये ऑपरेट होंगे, तीनों कंपोनेंट ऊपर ये भी ऑपरेट होंगे, तीनों कंपोनेंट ऊपर ये भी ऑपरेट होंगे। ठीक है, सो ये जो ऑपरेटर है इसे क्या बोल जाता है, लैप्लेस ऑपरेटर। ठीक है, इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर आपको मिलेंगे यहाँ पे, एंड हम कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंट बेसिकली हम एक लैप्लेस इक्वेशंस होंगे, लैप्लेस इक्वेशंस किसी रीजन पे अगर पोटेंशियल फाई हो व भी हो, एंड इफ दिस रीजन इज चार्ज फ्री, वहां पर कुछ भी चार्ज नहीं हो, लाइक द रीजन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दोनों पैरेलल प्लेट के बीच का जो रीजन है देयर इज नो चार्ज बट वहां पर एक पोटेंशियल है, तो ऐसे रीजन पे अगर हमें किसी पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा जाए तो हम लैप्लेस इक्वेशन से पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकता हूँ। प्रीवियस स्लाइड तो जब भी ऐसी रीजन आएंगे आपको तब हम इस इक्वेशंस यूज करेंगे। ठीक है, बट इस इक्वेशन ये सारे डेफिनेशंस आप तभी लिख पाओगे जब आपको ये टेबल याद रहे, और इस टेबल को याद करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम सबसे पहले अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेंगे, कि कोऑर्डिनेट सिस्टम से सब कुछ लिखा गया यहाँ पे है ना, U1 U2 U3 H1 H2 H3 एंड देन E1 कैप E2 कैप E3 कैप। डन सर। हाँ, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमें यहाँ पे पढ़ना है, वो लिखे डिराक डेल्टा फंक्शन।
ठीक है, Dirac delta function. So it's Dirac delta functions basically यहाँ पर जो हमें यूज करना है, sometimes like आप लोगों ने divergence sometimes to represent mathematically something, we sometimes we have to represent a point charge as a volume charge, point charge as a surface charge, point charge as a linear charge. तो ऐसी सिचुएशंस पे हम सिर्फ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस यूज करके एक पॉइंट चार्ज को भी लीनियर चार्ज की तरफ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एक पॉइंट चार्ज को एक सरफेस चार्ज डेंसिटी की तरफ भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक पॉइंट चार्ज को वॉल्यूम चार्ज की तरफ भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. एंड सो जब भी ऐसे सिचुएशंस आएंगे तब हमें इस डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस यूज करना है. तो उसके लिए डायरेक्ट डेल्टा का कुछ प्रॉपर्टीज यूज होता है. तो पहले हम ये देख लेते हैं कि डायरेक्ट डेल्टा का कौन से प्रॉपर्टीज यहाँ पर हम यूज करने वाला है, and then how we can represent point charge as a volume charge, linear charge, उसके बारे में हम थोड़े से डिस्कस करेंगे. So Dirac delta function कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, डेल्टा x माइनस a. ये जो फंक्शन है, इस फंक्शंस क्या होंगे, इस फंक्शंस का वैल्यू होंगे इनफाइनाइट एट पर्टिकुलर x इक्वल्स टू ये जो यहाँ पर गिवन रहेंगे. तो इससे आप 0 पुट करें, जो x का वैल्यू मिलेंगे उस पॉइंट पे इसका वैल्यू होंगे ये. अदरवाइज इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 0. ठीक है, अदरवाइज इस फंक्शन का वैल्यू होगा 0. एंड इस डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस के जो है, इसका अगर हम एरिया अंडर द कर्व देखें, एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, हमेशा यूनिट होंगे. सो कुछ प्रॉपर्टीज जो हमें यहाँ पर यूज करना है, तो यहाँ पर लिखे प्रॉपर्टीज ऑफ दिस डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस. बट बिफोर दैट इस फंक्शंस को अगर हम जस्ट ड्रॉ करें तो हमें किस टाइप का मिलेंगे. से मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस, ये पॉइंट मान लीजिए x इक्वल्स टू 0, यहाँ पर मान लीजिए x इक्वल्स टू ये पॉइंट है. सो इस डेल्टा x माइनस a को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने चाहें, सो पर्टिकुलर एट x इक्वल्स टू ये पे हमें क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट. एंड अदर पॉइंट पे इसका वैल्यू क्या होगा, 0. ठीक है, अदर किसी भी पॉइंट पर, हर पॉइंट पे इस डेल्टा x का वैल्यू क्या मिलेंगे, इस फंक्शन का वैल्यू मिलेगा हमें 0. सो नेक्स्ट क्या है कि अगर हम इससे इंटीग्रेट करें, एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करने चाहे, तो इस एरिया अंडर द कर्व क्या होंगे, यूनिट होंगे. So first thing is area under the curve is unit. So area under the curve unit मीन क्या है कि अगर हम इसे इंटीग्रेट करें माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा x माइनस a इंटू डी एक्स, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आना चाहिए, 1. ठीक है, इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना मतलब एरिया अंडर द उस फंक्शंस का अंडर जो एरिया है उस एरिया हम कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पर भी इसे इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे. अब देखो इस इंटीग्रेशन का लिमिट अगर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो, देन इसके वैल्यू हमेशा क्या होंगे, 1 होंगे. लेकिन समटाइम्स इस इंटीग्रेशन का लिमिट कुछ ऐसे गिवन रहता है, से b टू c डेल्टा x माइनस a इंटू डी एक्स. इस केस में देखो ये जो लिमिट है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, जिस पॉइंट पे पीक है, से मान लो x इक्वल्स टू ये पॉइंट है एंड x इक्वल्स टू b पॉइंट यहाँ पर है, ये है x इक्वल्स टू b एंड ये है x इक्वल्स टू c. तो अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ एंड पीक जो है इस इंटीग्रेशन का जो लिमिट है इस लिमिट के अंदर है, तब इस इंटीग्रेशन का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, 1. ठीक है, 1. लेकिन अगर मान लेते हैं आपको से आप यहाँ से लेके यहाँ तक इस रीजन के ऊपर इंटीग्रेट कर रहा हो, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, पीक तो इसका आउटसाइड पे है, तब इसका वैल्यू हमें क्या मिलेंगे, 0. So this will be 1 when a lies between
सी एंड बी के अंदर और सी के अंदर हो तभी इसका वैल्यू होंगे 1 एंड अदरवाइज क्या होंगे 0। ठीक है, अदरवाइज इसका वैल्यू क्या होगा 0 होंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है कि किसी भी फंक्शंस के साथ एफ ऑफ एक्स कोई भी एक फंक्शन है, एक्स के कुछ भी फंक्शन है एंड इस फंक्शंस के साथ अगर हम डिडक्ट डेल्टा फंक्शंस मल्टीपल करें डेल्टा एक्स माइनस ए, इस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आना चाहिए हमें देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए देखो मान लो एक्स है एंड यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कोई भी एक फंक्शन है, इस टाइप का एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड यहाँ पर एक डायरेक्ट डेल्टा पीक भी है, एक्स इक्वल्स टू मान लो से ये पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ये, तो इस पॉइंट पे एक पीक है। तो अगर हम इन दोनों को प्रोडक्ट करें, एक है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका वैल्यू होंगे इन्फिनिटी एंड अदर पॉइंट पे 0, तो इन दोनों फंक्शंस को अगर हम प्रोडक्ट करें तो क्या मिलना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट एट एक्स इक्वल्स टू ये पे क्या होगा इनफाइनाइट एंड अदर पॉइंट पे क्या होना चाहिए, अदर पॉइंट पे Zero. डेल्टा फंक्शन Zero. क्या होगा 0 है। Zero. तो Yes, sir. किसी भी x 0 के साथ कुछ भी टकराए तो क्या होना चाहिए 0 ही होना चाहिए, सो इट विल बी 0। सो इससे कुछ इस तरीके से हम लिख सकता हूँ कि देखो अदर पॉइंट पे इस प्रोडक्ट का वैल्यू होगा 0 एंड पर्टिकुलर x इक्वल्स टू ये पे क्या होगा इस फंक्शंस का वैल्यू इनटू डेल्टा x माइनस ए। ठीक है, सो यहाँ पर दिस डेल्टा x माइनस ए इट विल बी इनफिनिट एट x इक्वल्स टू ये एंड अदर पॉइंट पे इसका वैल्यू होगा 0, so this whole quantity will be 0। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर हम इस डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस के साथ कोई भी एक फंक्शन मल्टीपल करें एंड देन अगर हम इसे इंटीग्रेट करें b to c, सो दिस इंटीग्रेशंस का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए अगर हम सेकंड प्रॉपर्टीज यूज करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, एफ ऑफ ए इंटू डेल्टा एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स बी टू सी। अब देखो जब हमने इस फंक्शंस पे एक्स इक्वल्स टू एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर दिया है, नाउ दिस फंक्शंस विल बी सम कांस्टेंट वैल्यू, है ना, इसका कुछ कांस्टेंट वैल्यू होंगे। तो अगर कांस्टेंट वैल्यू इट इज एक्स इंडिपेंडेंट तो आप इससे बाहर लिख लीजिए, इससे अगर हम बाहर लिखे तो हमें क्या मिलेंगे डेल्टा एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स इज दिस इंटीग्रल, है ना। शेगन इससे अगर हम एफ ऑफ ए को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं तो हमें मिलेंगे एफ ऑफ ए इंटू बी टू सी डेल्टा x minus a into dx. Now these integrations will be 1 if a is lies between b and c, and if otherwise this integrations का value क्या होगा 0। So इस integrations का value अगर 1 हो then इस integrations का value होंगे f of a and other one will be 0। So इससे हम क्या लिखेंगे, it will be f of a if a lies between c and b, or it will be 0 otherwise। ठीक है, इस लिमिट के अंदर अगर ना रहे तब क्या होंगे, इंटीग्रेशंस का वैल्यू होंगे 0। एंड सबसे लास्ट जो और एक प्रॉपर्टीज हमें ध्यान रखना है, सो एक्चुअली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमें वहीं से ही पूछा जाता है। लास्ट वन इज अभी तक हमने यहाँ पे जो भी डायरेक्ट डेल्टा लिखा गया इट्स एक्स के फंक्शन लिखा गया, तो एक्स क्या है, एक्स इज ए वेरिएबल। समटाइम्स हमें लिखा रहता है कि डायरेक्ट डेल्टा डेल्टा साइन एक्स डेल्टा कॉस एक्स डेल्टा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर इस टाइप का फंक्शन हो जो इटसेल्फ एक्स का फंक्शन हो, डायरेक्ट डेल्टा एक फंक्शन ऑफ फंक्शन का अगर फंक्शन रहा है, सो साइन एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड डायरेक्ट डेल्टा इज फंक्शन ऑफ साइन एक्स। तो अगर इस टाइप का फंक्शन रहा है, इससे हमें सबसे पहले अगर आगे मैथमेटिकल सॉल्व करने के लिए अगर इस तरीके से अगर हम विजुअलाइज करने चाहें कि एट एक्स इक्वल्स टू ए पे हम एक पीक मिलेंगे, एक्स इक्वल्स टू अनदर ए पे हम एक पीक मिलेंगे,
तो अगर इस फॉर्म में लिखने चाहे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी किसी डिराक डेल्टा फंक्शंस को अगर इन टर्म्स ऑफ फंक्शन का फंक्शंस गिवन रहे तब हमें फर्स्ट उससे वेरिएबल फॉर्म में लिखना होता है, देन ओनली आगे हम प्रोसीड कर पाएंगे। तो इसके लिए प्रॉपर्टीज नंबर 4 पे लिखे हैं डेल्टा इट इज अ फंक्शन ऑफ g and g itself function of x। सो इससे पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिराक को इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल में लिखना है। तो हम इससे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि x माइनस एक्स आई summation over I and then mod of x dash sorry g dash xi, where xi क्या है, where xi are the roots of gx equals to 0। सो हमें जो भी फंक्शंस यहाँ पर गिवन रहेंगे, इस फंक्शंस को अगर हम 0 पुट करें, इसके जो रूट्स मिलेंगे उस रूट्स का वैल्यू क्या होंगे, xi। ठीक है, सो यहाँ पे इस समेशन टर्म पे कितने टर्म आएंगे वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इस gx को, जो है gx को अगर हम 0 पुट करें उसके कितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे। इसमें अगर से 2 रूट्स मिले मतलब 2 सॉल्यूशंस मिले तो हमें यहाँ पे 2 टर्म मिलेंगे, इसके अगर 3 सॉल्यूशंस मिले तो हमें यहाँ पे 3 टर्म्स मिलेंगे, सो लाइक दिस। ठीक है, सो फॉर एन एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं से डिराक डेल्टा इज फंक्शन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, डिराक डेल्टा इटसेल्फ फंक्शन ऑफ साइन एक्स। तो इस केस में अगर हम इस डेल्टा को इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल में लिखने चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे gx क्या है। ठीक है, यहाँ पे gx क्या है, तो gx इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, sin x। सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस sin x का रूट्स फाइंड आउट करना है। तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम इससे क्या पुट करेंगे, 0। तो इससे अगर 0 पुट करोगे तो आपको यहाँ पे x का वैल्यू क्या मिलना चाहिए, n पाई। ठीक है, n पाई, where n will be plus minus 1, 0 plus minus 1 like this। So x where n will be 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 up to infinity। ठीक है, any integer। So इस केस में कितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स होंगे। सो हमें यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे। ठीक है, एंड gx डैश अगर हम फाइंड आउट करें, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम फाइंड आउट करें तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या मिलना चाहिए हमें, cos x। और यहाँ पर देखो मॉड ऑफ cos x मॉड ऑफ g से होता है, तो इस g का जो भी डिफरेंशिएशन होगा उसका हम x जहाँ जहाँ पे हमें रूट्स मिल रहा है उस रूट के वैल्यू फाइंड आउट करना है, यहाँ पे पुट करेंगे और इस क्वांटिटी का मॉड लेंगे। तो आप देखिए आप लोगों को पता होंगे जहां जहां पे sin x का वैल्यू 0 होता है, cos x का वैल्यू वहां पे हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अगर मॉड ऑफ देखें हमें प्लस माइनस 1 होंगे, अगर हम मॉड लेंगे तो हमेशा क्या होंगे, 1 होंगे। ठीक है, जैसे मान लो से x इक्वल्स टू 0 पे हमें यहाँ पर एक रूट्स मिलेंगे। सो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पुट करके देखो आपको क्या मिलेंगे, cos 0 1 cos 0 1। अब मान लीजिए से x अगर हम फर्स्ट 1 ले से a इक्वल्स टू 1 तो एक सेकंड रूट हमें कहाँ पे मिलेंगे, x इक्वल्स टू पाई पे। सो यहाँ पे अगर पाई पुट करो तब क्या मिलेंगे, -1। बट हमें यहाँ पे मॉड लिखना है तो क्या लिखेंगे हम, +1 ही लिखेंगे। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर का वैल्यू हमेशा क्या होगा हमारा, 1 ही आएंगे इस केस में, है ना। सो ये जो डिराक डेल्टा फंक्शन हमें गिवन था कि डेल्टा which is function of sin x, so इससे हम क्या लिखेंगे, कुछ टर्म अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखे कि फर्स्ट टर्म मान लो से x इक्वल्स टू 0 पे हम ले रहा हूँ फर्स्ट रूट सॉल्यूशन। सो x इक्वल्स टू अगर 0 पे लोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे x माइनस 0 एंड देन यहाँ पे cos x का मॉड, cos x इक्वल्स टू 0 पे cos का वैल्यू होंगे 0, cos का वैल्यू होंगे 1 और इसका मॉड लोगे तो आपको मिलेंगे 1।
सेकेंड मान लो x इक्वल्स टू पाई पे, x इक्वल्स टू अगर पाई पे लें तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डेल x माइनस पाई, xi का वैल्यू हम यहाँ पे पाई पुट करेंगे, सो पाई डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ पाई का मॉड, यहाँ पे ऐसे लिख लो, बाद में ना तो फिर भूल जाओगे, यहाँ पे कॉस 0 का मॉड, यहाँ पे कॉस पाई का मॉड, सेकेंड थर्ड रूट अगर से हम x इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई पुट करें, प्लस माइनस पाई आया था तो प्लस माइनस पाई पुट करें तब ये प्लस हो जाएंगे, प्लस डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ माइनस पाई एंड देन मॉड। सो ऐसे आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ यहाँ पे टर्म्स मिलेंगे, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे। सो इसका मतलब अगर हमें डिराक डेल्टा फंक्शन ऑफ साइन एक्स गिवन रहे, साइन एक्स, इससे अगर हम ग्राफिकली देखने चाहे तो हमें क्या मिलेंगे, हमें कुछ ऐसे मिलेंगे, ये मान लो आपका से एक्स एक्सिस, ये पॉइंट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू पाई, x इक्वल्स टू 2 पाई, x इक्वल्स टू 3 पाई, x इक्वल्स टू 4 पाई, शो ऑन इन्फिनिटी पे इधर चलेंगे, और इस साइड पे मान लीजिए जैसे माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई, सो ऑन इधर भी माइनस इन्फिनिटी तक होंगे। तो इस डेल्टा साइन एक्स क्या होंगे, इट्स विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शंस का सुपरपोजिशन एक्चुअली। ऐसी दोनों साइड पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पिक मिलेंगे हमें, है ना। तो जब भी किसी डिराक डेल्टा इटसेल्फ अगर फंक्शन गिवन रहे तो हमेशा हमें ऐसी कुछ मिलेंगे जहाँ पे मोर देन वन डिराक डेल्टा फंक्शन का एक्चुअली क्या होंगे, यहाँ पे सुपरपोजिशन मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे साइन एक्स था, तो साइन एक्स, डेल्टा साइन एक्स, इट इज अ सुपरपोजिशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिराक डेल्टा पिक। एंड पर्टिकुलर इस टाइप फंक्शंस को एक नाम भी है, इसको क्या बोला जाता है, कॉम फंक्शन। कॉम फंक्शंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपने देखे होंगे कॉम का सेफ, है ना, कॉम पे भी ऐसे बहुत सारे एरर होता है इस टाइप का, है ना, इसीलिए इसे बोला जाता है क्या, कॉम फंक्शन। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर ये एरो ऊपर इन्फिनिटी तक x इक्वल टू 0 पे जा रहा है सर, ये थोड़ा सा मतलब ये नहीं समझ पा रहे हैं। क्या समझ नहीं पा रहे हो, मतलब ये सर x इक्वल टू 0 पे सर ऊपर मतलब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है सर, ये थोड़ा सा हाँ। एक्सप्लेन कर दीजिए। इस फंक्शंस का वैल्यू ही कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि एक पर्टिकुलर एक वैल्यू है, इम्पल्स फंक्शन है जिसका वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इनफाइनाइट होंगे और अदर पॉइंट पे क्या मिलेंगे, 0 होंगे। ठीक है, ये फंक्शंस का डेफिनेशन ही है। इससे आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लो एक फंक्शंस कंसीडर कर लो जिस फंक्शंस का एरिया अंडर द क्या यूनिट है। से मान लो ऐसे एक फंक्शन है, इसका भी ये विड्थ है और ये हाइट है, इस हाइट और विड्थ का प्रोडक्ट अभी क्या है, यूनिट है। ठीक है, डब्ल्यू और एच को अगर हम प्रोडक्ट करें तो हमें क्या मिलेंगे, यूनिट। आप यहाँ पर अगर आप इस विड्थ जो है, विड्थ को आप रिड्यूस करते जाओ कीपिंग द एरिया फिक्स, तो आपको क्या मिलेंगे तब, अपने विड्थ घटाएंगे तो आपको हाइट क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। और अगर आप विड्थ चेंज करते जाओ, विड्थ डिक्रीज करो तब ये और बढ़ जाएंगे हाइट। तो ऐसे आप और भी अगर आप विड्थ डिक्रीज करोगे तो अब हाइट और बढ़ जाएंगे ऐसे। सो आप देखें, सो एच इंटू डेल्टा ओमेगा विथ एंड हाइट का प्रोडक्ट जो है ये आपका यूनिट है। सो आप अगर ओमेगा टेंस टू आप 0 लोगे, मतलब विथ टेंस टू अगर 0 हो, तब इस एच का वैल्यू क्या होना चाहिए, कीपिंग एरिया अंडर यूनिट, इन्फिनिटी 1 by टेंस टू 0, सो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या होना चाहिए, इंफिनिटी, है ना। सो एक ऐसी फंक्शन है जिसके एरिया अंडर द
कर्व क्या आएंगे, यूनिट आएंगे, लेकिन इसका जो विथ है, विथ टेंस टू 0 होता है, तो जिसकी वजह से हाइट टेंस टू क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। और इसी को मैथमेटिकली कुछ ऐसे लिखा जाता है कि अगर हम डेल्टा एक्स माइनस ए लिखे तो इसका मतलब इस फंक्शंस का वैल्यू पर्टिकुलर एक्स इक्वल्स टू ए पे होंगे इनफाइनाइट, एंड अदर पॉइंट पे इस फंक्शंस का वैल्यू क्या होंगे, 0। ठीक है, एंड इस फंक्शन जो डिराक डेल्टा सबसे पहले साइंटिस्ट डिराक जो सबसे पहले लिखा था, उन्होंने एक्चुअली उनके जो प्रोफेसर है वो एक्चुअली स्टूडेंट हेविसाइड साइंटिस्ट, हेविसाइड बोल के एक साइंटिस्ट था जो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जो उन्होंने हेविसाइड फंक्शन भी यूज किया था सबसे पहली बार ना, इसलिए आप लोगों ने हेविसाइड बस स्टेप फंक्शन पढ़े होंगे। तो हेविसाइड स्टेप फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि फॉर एक सर्टेन वैल्यू से मान लो x इक्वल्स टू लेस देन 0, तब इस फंक्शंस का वैल्यू है सर्टेन वैल्यू से मान लीजिए 0, एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तब इस फंक्शंस का वैल्यू मान लीजिए से 1। ठीक है, 1। एंड हेविसाइड ये जो फंक्शन है, इस हेविसाइड फंक्शन इंट्रोड्यूस किए थे 1880। ठीक है, एंड इसके 40 इयर्स लेटर साइंटिस्ट डिराक डेल्टा, मतलब साइंटिस्ट डिराक इस फंक्शंस का जब इन्होंने डिफरेंशिएट किया इस फंक्शन को, देखो x लेस देन 0 इट इज ए कांस्टेंट फंक्शन, तो हर पॉइंट पे क्या होगा, 0 मिलेंगे। x ग्रेटर देन 0 पे हर पॉइंट पे इस फंक्शंस का डिफरेंशिएशन क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। लेकिन पर्टिकुलर अगर हम से a पॉइंट जो x इक्वल्स टू 0 पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर हम इस फंक्शंस का वैल्यू फाइंड आउट करने चाहिए, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने चाहिए इस फंक्शन का। सो डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या है, चेंज ऑफ y डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ x। सो यहाँ पर भी अगर हम देखें, सो जस्ट ऐसे लिखे कि x टेंड्स टू 0 माइनस और 0 प्लस, मतलब इस साइड से ऑब्जर्व करें और इस साइड से ऑब्जर्व करें। सो जो ऑब्जर्वर इस साइड से ऑब्जर्व करेंगे उस फंक्शंस का वैल्यू देखेंगे 1, और इस साइड से अगर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करे तो इस फंक्शंस का वैल्यू देखेंगे 0। सो सेम पॉइंट पे दोनों साइड से अगर देख रहे हैं, सो डेल्टा y का वैल्यू इज फाइनाइट, डेल्टा y इज फाइनाइट, सम फाइनाइट वैल्यू से a मान लो यहाँ पे, सम फाइनाइट वैल्यू, एंड डेल्टा x क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, 0। ठीक है, डेल्टा x 0, सो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या मिलना चाहिए, इनफाइनाइट, है ना, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इनफाइनाइट। तो इसीलिए आप लोगों को भी मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ाए जाते होंगे कि किसी भी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे फाइनाइट अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो, जैसे यहाँ पे देखो फाइनाइट अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो ऐसे फंक्शंस को अगर हम उस पॉइंट पे डिफरेंशिएट करें तो हमेशा क्या होंगे, इट विल बी डिराक डेल्टा फंक्शन। पर्टिकुलर इस पॉइंट पे इसका वैल्यू इनफाइनाइट होंगे, अदर पॉइंट पे इस डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या मिलेंगे हमें, 0 मिलेंगे। ठीक है, 0 मिलेंगे। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या लिखेंगे, डिराक डेल्टा फंक्शन से रिप्रेजेंट करा हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पर ये टर्म आपको क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जो पीक है, जिस पॉइंट पे इस फंक्शंस का वैल्यू, किस पॉइंट पे इस फंक्शंस का वैल्यू इनफाइनाइट होंगे, वो रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर हमने देखा है कि आपका sin x था, तो sin x का रूट जहां जहां पे मिलेंगे उसी पॉइंट पे इस फंक्शंस का वैल्यू से इनफाइनाइट होंगे। तो sin x को अगर हम 0 पुट करें, सो 0 पे होंगे इनफाइनाइट, पाई पे होंगे इनफाइनाइट, माइनस पाई पे होंगे इनफाइनाइट, -2 पाई, +2 पाई, -3 पाई, +3 पाई, ऐसे हर पॉइंट पे इस फंक्शंस का वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो इसीलिए हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट करा कि x इक्वल्स टू 0 पे इनफाइनाइट, x इक्वल्स टू पाई पे इनफाइनाइट, x इक्वल्स टू 2 पाई, x इक्वल्स टू 3 पाई, 4 पाई, एंड अदर पॉइंट पे इस फंक्शंस का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, सो यहाँ तक पढ़ के आओ, बाकी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जो है, हाँ बोलो। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपने बोला कि कोई फंक्शन अगर फाइनाइट डिसकंटिन्यूअस होता है किसी पॉइंट पे तो उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट डेल्टा आता है। हाँ, तो सर डायरेक्ट डेल्टा का जो पीक होता है सर वो इनफाइनाइटली बड़ा होता है ना, उसकी हाइट इन्फिनिटी होती है सर। तो आपने बोला कि फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, तो सर वो फाइनाइट होना चाहिए ना पीक उसका, नहीं डिफरेंशियल फंक्शन का वैल्यू फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो तब हाँ, जाकर सर। उसका जो डिफरेंशिएशन होंगे, डिफरेंशिएशन क्या मिलेंगे, फाइनाइट, देखो फाइनाइट dy क्या मिलेंगे, अगर वहां पे स्टेप है तो dy का वैल्यू फाइनाइट मिलेंगे तब, हाँ सर, चेंज ऑफ y, हाँ सर, चेंज ऑफ y डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ x। सो इसका वैल्यू अगर हमें इनफाइनाइट होना हो तो चेंज ऑफ y का वैल्यू क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट होना चाहिए, हाँ सर।
तो Okay. किसी पॉइंट पे फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन अगर फाइनाइट डिसकंटिन्यूअस हो, फाइनाइट अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो, तो उस पॉइंट पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा? डिराक डेल्टा फीचर। डायरेक्ट डेल्टा होगा। no, सर del x जो है वो चेंज उसका हो ही नहीं रहा है, हाँ, चेंज del नहीं x हो तो रहा है, लेकिन y पे चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है, तो 0 हो जाएगा, समथिंग बाय फाइनाइट बाय 0 इज इंफिनिटी। समथिंग फाइन। ओके सर, थैंक यू। ठीक। सर प्लीज सर लास्ट स्लाइड। ओके सर।